Hello दोस्तों, welcome to Kalam IAS UPSC CSET crash course. Today we would be continuing our series of lectures. Today we would be discussing an important topic from which questions are continuously coming, and it's a very simple topic. So the topic for today's discussion would be speed, time and distance. So first the approach would be same as discussed earlier. We would be discussing the concepts, we would be discussing the formulas, and on the basis of 8 formulas we would be seeing some practice questions to understand the gist of the formula and how the questions are being framed and asked. And then the most important thing which is essential for us is to do PYQs. So at the end we would be solving the PYQs which have come from this topic in the past previous years questions of the UPSC. Okay, so starting with the topic speed, time and distance. See, we need to do only one important formula which is important here is this: speed is equals to distance upon time. This is the only formula which you need to remember, and everything can be derived from it, and all type of questions can be solved from this. Okay, and sometimes what in the question there are two units for it. If you do मीटर पर सेकेंड में होती है स्पीड या किलोमीटर पर आवर में होती है. So sometimes we need to convert those things, and for conversion we know 1 kilometer is equals to 1000 meter, 1 hour is equals to 3600 seconds. So similarly अगर आपको 1 किलोमीटर पर आवर को 1 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब 5/18 कैसे आता है? ये आता है 1000 अपॉन 3600. 2 5s 2 18s. ठीक है. सो ये कन्वर्जन फैक्टर आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अपन को काफ़ी काम आएगा आगे. और सिमिलरली 1 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करने के क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा वो. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर. 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड, एंड 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर. ओके. So these two things is the main important thing which we need to remember in this section. Firstly, the formula speed equals to distance upon time, and secondly these two conversion things, and rest everything is same. Now another concept comes of average speed. So average speed में कुछ नहीं करना होता है. average speed क्या होता है अपना पीछे अपने देखा, speed equals to distance upon time. So average speed equals to total distance अपॉन टोटल टाइम. बस इतना सा फॉर्मूला है. ठीक है. टोटल डिस्टेंस किसी भी चीज़ ने जितना कवर्ड किया, मान लो यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 30 किलोमीटर, और टोटल टाइम यहाँ 10 सेकंड लगा, यहाँ 20 सेकंड लगा, यहाँ 30 सेकंड लगा, मतलब हर जगह उसकी स्पीड अलग अलग थी. सो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस दिस प्लस दिस अपॉन टोटल टाइम दिस प्लस दिस. ओके. So हो जाती है एवरेज स्पीड. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला विच वी कैन रिमेंबर इज दिस वन. फॉर टू थिंग्स, फॉर टू स्पीड्स, it is also derived from this thing only, total distance upon total time only, but for our convenience the short form is the short formula becomes 2s1 s2 upon s1 plus s2. अभी कैसे आया? स्पीड 1 है s1, स्पीड 2 है s2, सेम डिस्टेंस के लिए. ठीक है. तो s1 क्या होगा? d/t1. s2 क्या होगा? d/t2. तो d क्या हो गया? s1t1 इक्वल्स टू s2t2. ठीक है. इतना हो गया. अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? तो टोटल डिस्टेंस होता है अपना 2d. टोटल टाइम क्या होगा? t1 प्लस t2. तो जब आप पुट करोगे एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2d अपॉन t1 प्लस t2, तो आपको ये चीज़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ t1 क्या मिलेगा? d/s1. t2 क्या मिलेगा? d/s2. सो क्या आएगा? 2d अपॉन d/s1 प्लस d/s2. अब ये s1 एलसीएम लोगे तो उसके बाद आ जाएगा आपका 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2. सो ये डेरिवेशन है, ये कोई काम का नहीं है आपको. मैंने आपको बताया कि अगर नहीं भी याद आता है आपको तो आप नॉर्मल इससे कर सकते हो, बट अल्टीमेटली जो अपन को ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये कि उसका फॉर्मूला होगा 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 अगर एवरेज स्पीड निकालनी है और दो स्पीड्स दी हुई हैं. कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि
ए से बी जाना है, ए से बी कोई बंदा गया 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बी से ए आया अपना 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड और टोटल जर्नी। सो या तो आप टोटल नॉर्मल फार्मूला से निकालो, 1 एस पे पुट कर दो तो क्या होगा 2 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 15 इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये 10 10 100 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 4। तो नॉर्मल स्पीड हो गई उसकी 4। ठीक है, so this is the formula, this is the basic thing. So these two things only you need to remember, otherwise everything would be the same. Just keep this important one formula in the mind: speed equals distance upon time and the conversion factor, and rest would be very easy. Or this is a very simple topic, very simple questions come from it. Just we need to apply the formula basics on it. So let's move ahead. Now there are different categories of questions which are asked from this category. One is the train category. ए टू बी से एक ट्रेन जा रही है, बी टू ए से एक ट्रेन आ रही है, कितना क्या है, कौन सी ट्रेन कब मिलेगी, कौन सी ट्रेन कितनी बार एक ट्रेन को क्रॉस करेगी, है ना। एक ट्रेन स्टिल है, दूसरी ट्रेन मूव कर रही है, इसकी लेंथ दी हुई है, तो ये ट्रेन कितने टाइम में इसको मूव करेगी, कितने टाइम में उसको क्रॉस कर जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। और एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं नाव वाले, स्ट्रीम, कि स्टिल पानी है, यहाँ पे नाव जा रही है, नाव की स्पीड ये है, तो पानी की स्पीड क्या होगी। तो नॉर्मल होता है, इसमें आप नॉर्मल कंसेप्ट समझिए। अगर आप नॉर्मल भी अगर आप कहीं पे वाटर बॉडी के पास गए होंगे तो जो रिवर का फ्लो होता है या वाटर बॉडी का फ्लो होता है, अगर आप फ्लो के साथ जाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, बिकॉज नीचे की जो वाटर की स्पीड चल रही है वो तो कांस्टेंट चल रही है। और अगर आप उसी फ्लो में डायरेक्शन में अगर आप थोड़ा 2 किलोमीटर की स्पीड से, 2 भी थोड़ी सी स्पीड से चल रहे होंगे, तो आपकी स्पीड डबल हो जाएगी, नीचे वाली स्पीड प्लस आपकी स्पीड दोनों ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट में जा रहे होंगे कि नदी ऐसी जा रही है और आप ऐसे जा रहे हैं, तो फिर आपकी स्पीड जितनी भी नदी की स्पीड होगी उससे कम हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड्स। और ये अपन को इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना है। तो इसको अपन देखते हैं अभी यहाँ पे कि व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस, और कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट में एक और चीज़ बता देता हूँ। मान लो 2 बॉडीज़ मूव कर रही हैं, ये मूव कर रही है एक बॉडी 4 की स्पीड से और एक बॉडी कर रही है 2 की स्पीड से। अब रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या होता है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो इनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगी दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब दोनों की रिलेटिव स्पीड होगी 4 - 2। अब ये कैसे, मान लो इसने 4 किलोमीटर कवर किया 1 घंटे में, इसने 2 किलोमीटर कवर किया 1 घंटे में। ठीक है, अब आपको पता लगाना है दोनों मतलब 3 घंटे बाद कहाँ पे मिलेंगे दोनों। सो 3 घंटे बाद आप मान लो ये मिलेगा 4 4 8 4 12, तो ये 12 तक पहुँच गया। ठीक है, और ये 2 और 2, तो ये 8 तक पहुँचा। ठीक है, लेकिन अगर रिलेटिव स्पीड निकाल लोगे आप, थोड़ा ये 6 तक पहुँचेगा। 2 2 4 2 6, डिफरेंस 6 का है दोनों के बीच में। तो अगर आपने रिलेटिव स्पीड निकाल ली 4 - 2 इज इक्वल्स टू 3, तो उससे आप उसको फिर निकाल सकते हो चीज़ों को। सो रिलेटिव स्पीड का ये कंसेप्ट होता है। तो इसका एक शॉर्टकट होता है जो कि मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। जस्ट ध्यान रखना, जब दो बॉडीज़ मूव कर रही हो रिलेटिव स्पीड में, तो आपका एक सीधा सा काम होता है किसी भी एक मूविंग बॉडी को रेस्ट पे ले आना। अब रेस्ट पे कैसे लाएंगे, रेस्ट पे लाने का मतलब है अगर कोई भी बॉडी, कोई भी चीज़, ट्रेन या बोट या कुछ भी यहाँ इस डायरेक्शन में एक्स वेलोसिटी से, एक्स स्पीड से मूव कर रही है, तो इसको रेस्ट पे कब लाओगे, जब इक्वली आप एक्स स्पीड रिवर्स डायरेक्शन में लगा दोगे तो ये बॉडी रेस्ट पे हो जाएगी। ठीक है, अब सिमिलरली इसको कैसे देखना है, मान लो ये बॉडी चल रही है इस स्पीड से और ये बॉडी चल रही है इस स्पीड से, तो ये चल रही है अपना 8 से, ये चल रही है अपना 4 से। अब आपको रेस्ट पे लाना है, और जो एक्शन अपन किसी एक बॉडी में करते हैं वो सारी बॉडीज़ में करते हैं, ये रूल ध्यान रखिएगा। सो अगर अपन को रेस्ट पे लाना है तो छोटी वाली जो बॉडी होती है उसको अपन रेस्ट पे लाते हैं, जिसकी स्पीड कम होती है, तो इसको रेस्ट पे लाते हैं। तो पीछे 4 दिया था तो इधर 4 देंगे, इसको 4 दिया अपन ने इधर पे तो इसको भी 4 देंगे इधर पे। ठीक है, तो इसकी स्पीड नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगी, इसकी तो 0 हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी 8 - 4 = 4। सो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो गई 4। और ये कैसे आता है नॉर्मल, 8 - 4 भी करोगे 2 भी आ जाएगा। सो ये आइडिया होता है रिलेटिव कंसेप्ट का। अब मान लो क्या होता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक मूव कर रहा है ऐसा 4 से
और एक मूव कर रहा है ऐसा 6 से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेम चीज़, छोटी वाली जो होती है उसको अपन को रेस्ट पे लाना होता है, रेस्ट पे लाना होता है। छोटा कौन सा है इसमें, 4 छोटा है, तो 4 इधर 4 है तो अपन इधर 4 देंगे। अब जैसा आप मैंने बताया था, एक चीज़ को जैसा करोगे दूसरी को वैसा करना पड़ेगा। इसको अपन ने इधर 4 दिया तो इसको भी अपन इधर 4 और देंगे, ठीक है। तो ये 4 - 4 0 हो गया, और ये क्या हो गया, अब यहाँ पे ऐड होगा, 6 से यहाँ मूव कर रहा है, 4 से भी यहाँ मूव कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, 6 + 4 10 हो जाएगा। सो यही कंसेप्ट है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ऐड होगा, ठीक है। तो क्या पढ़ा अपन ने, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकेंड, कन्वर्जन फॉर्मूला 5/18 and 18/5. And third, the idea of average speed. And fourth, this thing, relative speed. क्या पढ़ा अपन ने, पहला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेकेंड 5/18 and 18/5 का कन्वर्जन फैक्टर, थर्ड एवरेज स्पीड TD अपॉन TT, और 2 होती हैं तो 2S1 S2 अपॉन S1 + S2, ठीक है। फोर्थ क्या पढ़ा, फोर्थ पढ़ा अपन ने रिलेटिव वेलोसिटीज, ठीक है। सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होता है, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होता है, ऐड होती है। बस ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपका पूरा ये चैप्टर हो गया, और सारे क्वेश्चंस अपने इन्हीं चीज़ों से सॉल्व हो जाएंगे। बस इसको ध्यान में रखना, अच्छे से इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। पूरे चैप्टर में सिर्फ अपना यही कंसेप्ट यूज़ होने वाला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। होप सो आप किसी को लोगों को डाउट नहीं होगा इस चीज़ पे। फंडा इज, अगर 2 पॉइंट का डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जो होंगी उनकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, टाइम टेकन HP में होगा। AP और HP अभी अपन आगे पढ़ेंगे, प्रोग्रेशन में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तब अपन इसको ज़्यादा से समझ पाएंगे। अभी के लिए शीट स्लाइड्स में लिख दिया था, सो अभी के लिए इसको यहीं पे नॉर्मल उसमें रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जब मैं बताऊंगा चीज़ों को तब अपन इसको समझेंगे, ठीक है। ट्रेन के लिए ध्यान रखिए, ट्रेन वाले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, क्या दिया हुआ है, टाइम टेकन इज इक्वल टू टोटल लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड। सो ये फॉर्मूला अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी कवर्ड हो गई, लेंथ मतलब डिस्टेंस ही हो गया, लेकिन डिस्टेंस में ही हो जाता है, ट्रेन की लेंथ भी कुछ होती है ना, 10 मीटर की लेंथ है ट्रेन की, तो इसको भी अपन को एडजस्ट करना पड़ता है। और रिलेटिव स्पीड जो इधर जा रही है जो इधर जा रही है, कोई भी एक चीज़ को रेस्ट पे लेके आना पड़ता है वो। और बोट्स में मैंने बताया, अगर आप रिवर के डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसको कहते हैं अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में क्या होता है, सॉरी इसको बोलते हैं अपन डाउनस्ट्रीम। जो रिवर के डायरेक्शन में आप जाते हो, नदी कैसे जाती है, ऊपर से नीचे जाती है, तो डाउन जाती है, नीचे जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब रिवर के डायरेक्शन में जाओगे तो उसको कहेंगे अपन डाउनस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम में मैंने क्या बताया था, रिवर के डायरेक्शन में आप ऊपर जा रहे हो तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, ऐड होगी, तो आपकी स्पीड हो जाती है ये स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इक्वल्स टू बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड। और अपस्ट्रीम मतलब रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना, तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाती है स्पीड, अपस्ट्रीम में स्पीड हो जाती है सब्ट्रैक्ट बोट की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड। और ये हमेशा ध्यान रखना, बोट की स्पीड ज़्यादा होगी रिवर से, मान लो नहीं है बोट की स्पीड रिवर से ज़्यादा अपस्ट्रीम में, तो क्या होगा, रिवर यहाँ पे जा रही है 4 से, आप जा रहे हो 3 से, तो आप कभी आगे ही नहीं बढ़ते पाओगे, 1 किलोमीटर से आप इस तरफ ही जाते जाओगे, पीछे जाते जाओगे आप। सो हमेशा इसलिए बोट की स्पीड रिवर की स्पीड से ज़्यादा होगी, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर। सो यही 2-3 चीज़ें बतानी थी मेरे को कंसेप्ट्स में, आपको फॉर्मूलाज में। तो नॉर्मल फार्मूला अपन ने देख लिया स्पीड डिस्टेंस का, ट्रेन वाला कंसेप्ट देख लिया अपन ने रिलेटिव स्पीड्स का, और ये बोट वाला कंसेप्ट देख लिया। अब इसी पे आगे बढ़ते हुए अपन ये देखेंगे कि कैसे क्या करना होता है। सो यही बोट वाले क्वेश्चन मैंने बताया, इफ द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम इज x। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन मैंने बताया था रिवर ऊपर से नीचे आती है डाउन, तो डाउन में ऐड करते हैं, तो डाउन स्ट्रीम में रिवर के डायरेक्शन में, तो ये स्पीड x है। और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, और सेम रिवर में अपस्ट्रीम की स्पीड y है। सो देन स्टिल वाटर मीन्स पानी का कोई फ्लो नहीं है, पानी रुका हुआ है, अब स्पीड क्या होगी, तो नॉर्मल आप निकाल सकते हो,
स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूला से। लेकिन ध्यान रखने वाली चीज़ ये है इसमें, अगर नहीं है तो नॉर्मल इसको याद कर लीजिए कि डिस्टिल वाटर में स्पीड हो जाती है x प्लस वाई बाई टू, दोनों का एवरेज हो जाता है दोनों स्पीड का, बिकॉज डिस्टेंस सेम रहेगा आपका, टाइम मैटर करेगा, तो स्पीड ये हो जाती है। ठीक है, और फिर रेट ऑफ स्ट्रीम कितना हो गया इसका, स्ट्रीम मतलब जो नदी की स्पीड है, नदी की स्पीड क्या हो गई, फिर नदी की स्पीड हो जाती है आपकी x माइनस वाई बाई टू। तो ये चीज़ अपन ध्यान रखेंगे, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। बोट्स एंड स्ट्रीम्स वाले में ये फॉर्मूला अपन ध्यान रखेंगे कि अप डाउन स्ट्रीम में स्पीड x है, अप स्ट्रीम में स्पीड y है, तो सिर्फ स्टिल वाटर में स्पीड कितनी होगी x प्लस वाई बाई टू, और स्टिल वाटर जो अपना वाटर है, वाटर की स्पीड कितनी होगी x माइनस वाई बाई टू। ठीक है, और ये कन्वर्जन फैक्टर ही दिया हुआ है 5/18 3.6 18/5 3.6 होता है, तो उसके बेसिस पे कर सकते हैं। तो वही है 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 18/5 kmph इज इक्वल्स टू 3.6 kmph। तो डजंट मैटर, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है हमेशा, लेकिन क्वेश्चन 18 के फैक्टर्स वाला ही होता है इन सब में, तो कैंसिलेशन आराम से हो जाता है, तो दिक्कत की बात नहीं है। फिर ट्रेन वाले कंसेप्ट में एक और बात आती है कि ट्रेन की जो अपन ने देखा था लेंथ कितनी होगी, ट्रेन की लेंथ भी होती है ना, तो ट्रेन की लेंथ के बेसिस पे, तो सपोज L1 L2 लेंथ है, S1 S2 है ईच अदर द टाइम। अब के मैंने क्या बताया, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है जल्दी बताइए, ऐड होता है सब्ट्रैक्ट होता है? ठीक है, ऐड होता है, क्योंकि इसको आप इधर दोगे, इसको भी आपने इधर दिया, तो इसको भी आपको इधर देना पड़ेगा, तो ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो पे हो जाएगी, मतलब एक रेस्ट पे हो गई। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब चीज़ें होती हैं तो ऐड होती हैं, तो इसलिए क्या होगा, L1 प्लस L2 अपॉन स्पीड ऐड हो जाएगी S1 प्लस S2। ठीक है, और जब अपोजिट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं तो क्या होगा, तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो इसलिए वही है L1 प्लस S2 अपॉन S1 माइनस S2। सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट विच यू नीड टू रिमेंबर इन दिस टॉपिक. Now we will be moving ahead with the different category of the questions which come in this and how to solve them and then the PYQs. तो see, based on the unit conversion जो अपन देखे थे, x किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 18 सेकेंड लग रहा है उसको, और लेंथ ऑफ द ट्रेन 180 है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, तो स्पीड 180 दिया हुआ है, 180 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, क्योंकि लेंथ कितनी है 180 और डिस्टेंस टाइम कितना है 18 सेकेंड्स, तो स्पीड कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, ये जो दिया है. फिर इसके बाद क्या होता है, अपन को आंसर को किलोमीटर पर आवर में करना है. तो किलोमीटर पर आवर अपन क्या किए थे, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 18/5 किलोमीटर पर आवर. सो 10 इंटू 18/5, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 36, तो 36 आ गया. ठीक है, सो ये आ गई चीज़ें, नॉर्मल कन्वर्जन फॉर्मूला पे था. सो यही है वो अपना कन्वर्जन वाला जो आपको याद रखना है कि अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में लेके आना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकेंड में लाना है तो 5/18. अब इसको ध्यान कैसे रखेंगे, मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है. ठीक है, अगर आपको मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो बड़े वाले में कन्वर्ट करना है तो बड़ा वाला फैक्टर मतलब 18 ऊपर आएगा, 18 बड़ा होता है तो बड़ा वाला ऊपर आएगा. और अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में करना है, किलोमीटर बड़ा है मीटर पर सेकेंड बड़े से छोटा करना है, तो छोटा वाला ऊपर आएगा, 5 ऊपर आएगा 18 नीचे आएगा. तो ऐसे आप ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि आप 18/5 से मल्टीप्लाई करें 5/18 से मल्टीप्लाई करें. और यूपीएससी इतना स्मार्ट है कि उसके दोनों ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपने 18/5 पुट किया तो भी आंसर है, 5/18 पुट किया तो भी आंसर है. तो अगर अपन को कन्फ्यूजन है तो अपन सही की जगह गलत आंसर मार्क कर आएंगे और फिर अपन को पॉजिटिव की जगह नेगेटिव मिल जाएगा. सो बी प्रिपेयर्ड विथ इट. और ऐसे चीज़ों को आप याद कर सकते हो. हाँ, अब एक और फॉर्मूला होता है कि ये 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी हैविंग द स्पीड x एंड y. ये ए है, x स्पीड से चल रहा है, ये b है, y स्पीड से चल रहा है. रेशो ऑफ द स्पीड्स हैं उनकी a:b, मतलब x/y इज इक्वल्स टू a/b है. अब टाइम टेकन, तो दोनों का देखो डिस्टेंस सेम है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो st इज इक्वल्स टू s2t2.
तो उससे आप निकाल लोगे तो ये अपन याद कर लेंगे। याद नहीं करेंगे तो आप हमेशा डिराइव कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है याद करने की, लेकिन याद करने से आसानी हो जाती है कि दोनों का स्पीड का रेशो अगर A/B है तो दोनों का टाइम टेकन होगा 1/A/1/B या फिर B/A। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ स्पीड इज A/B देन टाइम टेकन वुड बी B/A। अगर स्पीड 2:3 के रेशो में है तो टाइम कितना होगा 3:2। बिना सॉल्व किए अपन आंसर दे देंगे। अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि दो बॉडीज़ हैं, उनकी स्पीड है 2:3 के रेशो में, कितना भी डिस्टेंस जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, फलाना ठिकाना हो रहा है, और उसके बाद आपको बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद बोला उसके उनके टाइम का रेशो बताइए। तो रादर देन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड वी वुड से कि स्पीड अगर 2:3 के रेशो में थी तो उनका टाइम जो होगा 3:2 के रेशो में होगा। दैट्स द ईजिएस्ट थिंग, वेरी सिंपल, और सीधे आंसर आ जाएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। और डिस्टेंस ट्रेवल कितना होता है, डिस्टेंस ट्रेवल का रेशो A/B के उसमें ही रहेगा। ठीक है, सो ये सिमिलर उसका क्वेश्चन है। द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ अ बाइक एंड अ मोटर इज 4:5, देन व्हाट विल द रेशो ऑफ द टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना जाएगा 5:4, बिना कुछ किए सेम डेस्टिनेशन के लिए, ये आ गया 5:4। ये सॉल्वेशन भी किया है, 2 इक्वेशन सॉल्व बनेगी, 2 इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, अपन डायरेक्टली फॉर्मूला से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एक और आइडिया जो अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टोटल टाइम, तो वही फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है उसका। और ये जो 2 स्पीड होती है, तो 2 वाली स्पीड का मैंने बताया था, ये होता है, इसको आप सॉल्व करोगे तो वही आएगा 2s1s2 अपॉन s1 + s2। सो ये 2-3 फॉर्मूलाज हैं, आप लोग एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, या फिर जो आपको शीट मिलेगी, जो आपको शीट्स प्रोवाइड की जाएंगी यहाँ से कलाम IAS की तरफ से, तो उसमें सारे फॉर्मूलाज एक जगह मेंशन्ड होंगे, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, जो हैंडआउट्स मिलेंगे आपको। वरना इट्स बेटर कि साथ साथ जो लेक्चर्स आप देखते जा रहे हैं उसको एक जगह नोट डाउन करते जाइए, तो आपकी मेहनत बचेगी। और PYQs तो अपन आगे सॉल्व करेंगे ही, तो वो भी आपका यहीं पे कवर्ड हो जाएगा। अल्टीमेट एम ये है कलाम IAS का कि आपको कम से कम टाइम में सारी चीज़ें कवर करवा दी जाएँ, और ऐसे कवर करवा दी जाएँ कि आपको चीज़ें सॉल्व करते बने और वहाँ पे कॉन्फिडेंस है और CSET आपका कभी बैरियर ना बने। ना वही दिया है कि 50 किलोमीटर की स्पीड से आधा डिस्टेंस कवर करता है और रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करता है 35 किलोमीटर की स्पीड से, और अदर हाफ डिस्टेंस 10 किलोमीटर की एवरेज स्पीड। तो वही है 45 किलोमीटर फिर 50 किलोमीटर, टाइम टेकन अब निकाल लोगे इतना, फिर 54 मिनट्स। तो 3 इक्वेशन बनेंगी, तीनों को टोटल टाइम को ऐड करो। एवरेज स्पीड अपन ने निकाला था, क्या फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस वही निकालना है। स्पीड पता है, एक्स डिस्टेंस मान लो, तो एक्स डिस्टेंस का हाफ कितना हो गया x/2, अब अदर हाफ का क्या हाफ कितना हो गया x/4, फिर बचा हुआ कितना हो गया 3x/4। तो उस हिसाब से आपकी चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी और आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही। और नेक्स्ट थिंग अपन ने बताया ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स, तो अपन ने डिस्कस किया वही है, ठीक है। उसका क्वेश्चन देख लेते हैं सीधे, फिर बोट वाला देखते हैं, जल्दी से अपन PYQs पे आते हैं। अल्टीमेटली ये में अपने PYQ सॉल्व करना। 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन को क्रॉस करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में ध्यान रखना है, एक ऐसे चल रही है, कैसे चल रही है। अपोजिट डायरेक्शन में चीज़ें क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में चीज़ें ऐड होंगी, क्योंकि इसको आप ऐड करोगे रोकने के लिए, जो भी छोटा होगा इधर, इसको ऐड करोगे इधर, तो चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो हमेशा ऐड होगा चीज़ें। शॉर्टर ट्रेन की स्पीड कितनी है 180/12, ठीक है, ये दिया हुआ है। शॉर्टर ट्रेन इज इक्वल्स टू 12 डिस्टेंस, तो स्पीड इज इक्वल्स टू 180/12 इक्वल्स टू 15, ठीक है। और लॉन्गर ट्रेन की कितनी ये हो जाएगा 15 + x, अगर आपने मान लिया है 180 + 270, T1 + T2 अपॉन स्पीड क्या होती है ये इसको, और लॉन्गर स्पीड की स्पीड तो अपन को पता नहीं है, x है, तो स्पीड क्या करेंगे ऐड हो जाती है अपनी, तो 15 + x हो जाएगी स्पीड, क्योंकि एक अगर 15 से चल रहा है तो दूसरा 15 + x से चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो स्पीड अपनी ये हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया दिस, और टाइम कितना टेक किया उसने 10.8। तो फिर ये क्वेश्चन बनेगी, इसको सॉल्व करोगे तो 96 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आपका, ठीक है। सो ये कंसेप्ट से नहीं, फॉर्मूलाज अपन को ध्यान रखने हैं, और बहुत इजी चीज़ें हो जाएंगी इसके बाद अपनी। ये स्ट्रीम वाला तो वही मैंने बताया था, सेम चीज़ है कि अगर आप डाउन स्ट्रीम चल रहे हो, डाउन मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हो, नदी के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो चीज़ ऐड हो जाएगी, अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ना इंपॉर्टेंट थिंग आती है अपना PYQs। तो PYQs में सेम अप्रोच फॉलो करेंगे, जो भी आइडियाज़ मैंने बताए हैं उन चीज़ों पे अपन डिस्कस करेंगे अभी,
और उस पर आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद, और उसके बाद अपन उसको डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, सो ये पहला क्वेश्चन है अपना। अ मैन टेक्स हाफ टाइम इन रोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे जाना है, मतलब चीज़ें ऐड होंगी। देन अपस्ट्रीम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर विद द स्पीड ऑफ द करंट। सो 1 मिनट का टाइम में सॉल्व करके देखिए, बहुत सिंपल का सवाल है, 2020 में आया हुआ है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट द स्पीड इन अप स्ट्रीम बी यू और डाउन स्ट्रीम में वी। ठीक है, नहीं इसको ऐसा नहीं करें, 1 सेकेंड। लेट्स अज्यूम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। खड़े पानी में, जहाँ पे पानी की स्पीड कोई नहीं है, उसकी स्पीड है u। और स्पीड ऑफ रिवर फ्लो की स्पीड है v। तब जल्दी से मेरे को बताइए, डाउन स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी? u प्लस वी होगी। डाउन स्ट्रीम नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन में जाके ऐड होती है। और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी? u माइनस वी हो जाएगी। सो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम इज इक्वल्स टू u प्लस वी एंड स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू u माइनस वी। इतना समझ आया हर किसी को? ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट हर किसी ने कर लिया होगा। अब आगे कैसे प्रोसीड करना पर वो देखते हैं। अब इसके बाद आप डिस्टेंस को मान लीजिए, लेट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक्स। तो स्पीड कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो अपस्ट्रीम का एस यू इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टाइम। ठीक है, और एस डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन T2। ठीक है, अब उसने क्या लिखा है, अभी ध्यान से देखिए। हाफ टाइम इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का टाइम जो है वो हाफ है अपस्ट्रीम के, मतलब TU इज इक्वल्स टू 2TD। तो ये अपस्ट्रीम का TU है, ये TD है। TU कितना है? 2TD है। ठीक है, तो SU इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2TD और एस डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन TD। ठीक है, सो SU अपॉन SD कितना हो गया? एक्स अपॉन 2TD मल्टीप्लाइड बाय TD अपॉन एक्स। ये डिवीजन में है तो अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, TD कैंसिल हुआ। सो SV अपॉन SD इज इक्वल्स टू 1:2। अब उसने क्या पूछा है? स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, एक तो ये चीज़ आ गई अपनी। अब आगे देखिए आगे क्या होगा। सो ये 3 चीज़ अपनी हो गई हैं। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम अपने पता है, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम हमको पता है, और अब एक और चीज़ पता चल गई है, टू स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी थी? 2u प्लस वी इज इक्वल्स टू u माइनस वी। 2v प्लस 2u इज इक्वल्स टू u माइनस वी। ठीक है, 3v v यहाँ पे आएगा तो 2v माइनस वी बचेगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, सॉरी, अपना ये हो जाएगा
2u minus v is equals to u plus v. So 2 downstream is equals to s upstream. ठीक है, फिर इसके बाद चीज़ें हो जाएंगी, सॉल्व की इसको, 2u माइनस 2v इज इक्वल्स टू u प्लस v. सो u इज इक्वल्स टू 3v. सो u इज टू v का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1 हो गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा. सो नॉर्मल क्वेश्चन को रीड करके ये करना है, बट हमेशा ध्यान रखिएगा, देखिए 3:1 और 1:3 दोनों आंसर दिए हुए हैं यूपीएससी के ऑप्शन में, तो अपन को ध्यान रखना है कि किसका स्पीड ऑफ स्टिल वाटर का करंट के साथ निकालना है. स्टिल वाटर का अपन इमेजिन क्या किया था, u, और करंट वाटर का क्या किया था, v. तो आपको u/v निकालना है, v/u नहीं निकालना है. अपन से थोड़ी सी मुझसे भी यहाँ पे गलती हो गई थी, आई एम सॉरी. सो वो अपना मिस्टेक हो गया था बीच में, तो इस चीज़ को अपन को ध्यान रखना है कि ये मिस्टेक्स अपन से एग्जाम में ना हो, इसलिए बहुत आराम से, बहुत उससे अपन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस उनको अपन को अच्छे से डिसाइफर करना रहता है. ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, कार ट्रेवल्स फ्रॉम अ प्लेस एक्स टू प्लेस वाई, ये एक्स प्लेस है, ये वाई प्लेस है, एट अ स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर फ्रॉम, है ना, v की स्पीड से जा रहा है पहले, फ्रॉम y टू x 2v से आ रहा है, अब फिर x टू y जा रहा है 3v से, फिर y टू x आ रहा है 4v से. यही लिखा है, अगेन फ्रॉम x टू y एट अ स्पीड ऑफ 3v एंड अगेन फ्रॉम y टू x एट अ स्पीड ऑफ 4v. एवरेज स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, चलिए अब सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से. तो कैसे सॉल्व होगा ये, लेट डिस्टेंस बी ए. टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस मतलब एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस था ये, इसको अपन ने ए मान लिया. टोटल डिस्टेंस अपना हो गया 4a. 4 बार आए गए, इसमें लिखा है, एक बार एक्स से वाई गए, फिर वापस आए, फिर वापस गए, फिर वापस आए, तो हर बार ए डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा अपना 4a. ठीक है, अब हर बार टाइम टेकन देखो, फर्स्ट राउंड में अपन कितनी स्पीड से गए थे, v की स्पीड से गए थे. ठीक है, तो डिस्टेंस अपन ने a ट्रेवल किया, तो a बाई वी हो गया अपना टाइम. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना था a, है ना, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम कितना लगा, a अपॉन वी, दूसरी बार करेगा a अपॉन 2v, 3 लगेगा a अपॉन 3v. a अपॉन 4v. ठीक है, सो ये हो गया अपना चारों. अब हमको क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम निकालेंगे अपन, तो टोटल डिस्टेंस कितना था 4a, टोटल टाइम कितना होता है a अपॉन v प्लस a अपॉन 2v प्लस a अपॉन 3v प्लस a अपॉन 4v. अब इसको एलसीएम लोगे तो 4a अपॉन 12 होगा, इसका एलसीएम होगा 12. एलसीएम ऐसे कल पढ़ा था अपन ने. ठीक है, तो 4 यहाँ पे 12 होगा, तो 12a प्लस 6a प्लस 4a प्लस 3a अपॉन 12v. ठीक है, सो ये कितना हो गया, 4a अपॉन 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 22, 22 प्लस a 25, 25a अपॉन 12v. इसको कैसे लिखेंगे अपन, 4a अपॉन 25a इंटू 12v, a से a कैंसिल हुआ, मतलब 24v अपॉन 25, सॉरी 12 है ना, ये 4 है ये. ठीक है, 48 होगा ये. सो 48 अपॉन 25. ठीक है, कितना आ गया अपना, एवरेज स्पीड कितनी आ गई, एवरेज स्पीड आ गई अपनी 48v अपॉन 25. इसको डिवाइड करोगे तो अब कितना आएगा, ये आएगा 1.92v
डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देख सकते हो 25 इंटू 2 कितना होता है 50। सो 2v से कम है छोटी सी स्पीड, 2v से कम है लेकिन v से तो ज़्यादा है। सो इट विल लाई बिटवीन v एंड 2v। सो b विल बी द आंसर। सो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग था, बट लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सीधे एवरेज स्पीड और एवरेज डिस्टेंस पर टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम निकालना है। एवरेज स्पीड का नॉर्मल फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा था, सिर्फ एक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है सवाल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्राइट ट्रेन दिल्ली से मुंबई की जाते हैं, एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज इंपॉर्टेंट। 2 आवर्स लेटर एक्सप्रेस ट्रेन जाती है। ये देखिए, ये मुंबई है, ये दिल्ली है। अब एवरेज स्पीड है इसकी 40 kmph। अब 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद ये फ्राइट ट्रेन थी ना, अब एक्सप्रेस ट्रेन आती है आपकी, उसकी स्पीड होती है 60 kmph। ठीक है, ओके। अब ये बताना है कि हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड दे मींस। अब मान लो ये चीज़ यहाँ पे मिलती है, तो अपन को ये निकालना है कि ये डिस्टेंस दिल्ली से कितना है। क्वेश्चन समझ में आया? अब सॉल्व कीजिए इसको आराम से। तो ट्रेन वाला कंसेप्ट लगाइए, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाइए, सॉल्व करके देखिए इसको। ठीक है, तो फ्राइट ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? 40 है, एक्सप्रेस की है 60। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया फ्राइट ट्रेन ने? स्पीड इनटू टाइम। 2 घंटे में टाइम बात चल रही है, बिकॉज 2 घंटे बाद एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट हुई ना, तो जब तक एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट हुई उसके पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया फ्राइट ट्रेन ने? 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है, ये मान लेते डिस्टेंस इतना है, ये पूरा जो भी दिया है। जब तक ट्रेन स्टार्ट हुई फ्राइट ट्रेन ने 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, अब देखिए स्पीड निकालनी है अपन को। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या होती है, कौन बताएगा? ये 40 से जा रहा है, पैरेलल ट्रैक में 60 से जा रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? एक को रोकना है, इसको 40 इतना दे दिया अपन ने, इसको 40 इतना दे दिया अपन ने, तो बचा कितना? ये 20 बचा, सब्ट्रैक्ट होता है, तो 60 माइनस 40 20, तो रिलेटिव स्पीड हो गई दोनों की 20। ठीक है, अब दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी? दोनों ट्रेनें तब मिलेंगी जब दोनों का डिस्टेंस सेम हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी टाइम सेम होगा। जब एक टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी तब जाके दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो स्पीड हो गई अपनी 820 और डिस्टेंस कितना हो गया 80। दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी? 80/20 इज इक्वल्स टू 4 आवर्स। 4 घंटे बाद मिलेंगी दोनों ट्रेनें। ये चीज़ समझ में आई? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जब तक एक्सप्रेस ट्रेन नहीं निकली है तब तक फ्राइट ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? डिस्टेंस उनने ट्रैवल कर लिया है 80 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई है 20 kmph, 60 माइनस 40 से। अब बोथ ट्रेन विल मीट कब? तो कब मिलेंगी? सो 80/20 स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड आपको पता है, स्पीड कितनी है 20, डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया।
टाइम निकल आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम निकल आया अपन ने 4 आवर्स, 4 घंटे बाद ट्रेनें मिलेंगी। अपन को ये निकालना है 4 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, कितना डिस्टेंस इसको यहाँ से बचा रहेगा दिल्ली से। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन मीटिंग पॉइंट एंड दिल्ली से कितना होगा, 4 आवर्स का टाइम है, इंटू स्पीड कितनी है, स्पीड अब होगी फ्राइट ट्रेन की, फ्राइट ट्रेन बचा 2 ट्रेन मिल गई, फ्राइट ट्रेन की स्पीड के हिसाब से निकाल लेंगे अपन। तो फ्राइट ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 60 = 240। फ्राइट ट्रेन की स्पीड क्यों निकाली, बिकॉज जो बड़ी छोटी वाली स्पीड थी उसको तो अपन ने रिलेटिव स्पीड से रोक दिया था। ठीक है, तो अपना कितना हो जाएगा 240 अपना आंसर है। सो आई नो ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन अगर आप उसको रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट लगाओगे और वो वाला कंसेप्ट ला के उसको सॉल्व करोगे तो काफ़ी आसानी से ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। सो इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। आगे भी हैं सवाल, और प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब अ डेली ट्रेन इज टू बी इंट्रोड्यूस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी। ओके, 6 बजे स्टार्ट होती है और जर्नी को कंप्लीट करने में 42 आवर्स लगते हैं। तो एक दिन में अपन को पता है 24 आवर्स होते हैं, तो 2 दिन में कितने हो गए 48 आवर्स। सो मतलब 2 दिन से 6 घंटे कम लगते हैं इसको। मतलब आज अगर मंडे है, मंडे को 6 AM पे इसने स्टार्ट की है, सो ट्यूसडे को 6 AM जो होगा, ट्यूसडे को 6 AM होगा, 12 घंटे 24 घंटे हो गए, अर्थात 48 आवर्स होती हैं वेंसडे को 6 AM। सो वेंसडे को 6 AM में 48 आवर्स होते हैं। अब 48 आवर्स में आपको 6 आवर्स कम कर देने हैं। सो मतलब ट्यूसडे की नाइट के 12 बजे 12 एट मिडनाइट ट्रेन पहुंच जाएगी। ठीक है, ये सवाल है। अब देखते हैं इसको क्वेश्चन क्या पूछा। उसने पूछा है ये सिनेरियो है, 2 स्टेशन हैं, स्टेशन ए और स्टेशन बी। ठीक है, 6 AM पे दोनों पे गाड़ी छूटती है। सो कितनी गाड़ी चाहिए अपन को शटल सर्विस। शटल सर्विस क्या होता है, एक दिन ए से बी गई और बी से ए दूसरे दिन गाड़ी आ गई, मतलब डेली की डेली यहाँ से भी गाड़ी जा रही है, यहाँ से गाड़ी आ रही है। टोटल कितनी गाड़ी चाहिए कि आपको रोज़ दोनों जगह से ए टू बी और बी टू गाड़ी आ जाए। ठीक है, सब क्या होगा, डे 1 पे यहाँ से गाड़ी छूटेगी एक T1, यहाँ से गाड़ी छूटेगी T2। ठीक है, अब सेकेंड डे ये गाड़ी तो पहुँची नहीं, क्योंकि ये गाड़ी तो वेंसडे ट्यूसडे की रात को 12 बजे पहुँचेगी, ट्यूसडे की सुबह 6 बजे चाहिए, तो एक और नई गाड़ी आएगी T3। और ये वाली गाड़ी भी यहाँ नहीं पहुँचेगी, तो यहाँ भी नई गाड़ी चाहिए रहेगी T4। ठीक है, अब थर्ड डे जो ये T2 था, ये T2 तो यहाँ पे आ गया है। ये T2 तीसरे दिन वेंसडे को तो 6 बजे सुबह निकलने के लिए पहुँच गया ना ये, तो तीसरे दिन यहाँ पे फिर से T2 आ जाएगा और यहाँ से T1 आ जाएगा। सो अल्टीमेटली टोटल ट्रेन्स कितनी लगी अपन को, टोटल ट्रेन्स लगी अपन को 4। ये पूरी जर्नी कवर करने में टोटल 4 ट्रेन्स लगेंगे अपन को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, Amit starts from point A and walks to another point B and then return from B to A by his car and thus takes a total time of 6 hours and 45 minutes. 6 hours 45 minutes लगता है इसको। If he had driven both ways in his car, he would have taken 2 hours less. Both ways मतलब ऐसे और ऐसे, आगे पीछे दोनों क्या, दोनों तरफ जाया, तो T-2 आवर, 2 घंटे कम लगे। तो हाउ लॉन्ग वोट इट टेक टू टाइम द वॉक द बोथ वेज, तो बोथ वेज वॉक करने में कितना टाइम लगा अपन को वो निकालना है। ठीक है, तो 2 चीज़ें यहाँ पे, एक ड्राइविंग वाली चीज़ चल रही है और एक वॉकिंग वाली चीज़ चल रही है। दोनों चीज़ को ध्यान में रखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए।
चलिए तो इसको सॉल्व करके अपन आएंगे। सो ये ए है, ए स्टेशन ए, ये स्टेशन बी, ठीक है। नाउ लेट द डिस्टेंस बिटवीन दिस बी एक्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स है। अब उसने क्या दिया है, अमित स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स ऑन द पॉइंट बी एंड देन रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए बाय हिज कार। सो जाने में क्या लगता है, वॉकिंग, तो वॉकिंग की स्पीड और बी से कार से आता है प्लस ड्राइविंग की स्पीड, टोटल टाइम कितना लगता है उसको, 6 hours 45 minutes। लग रहा है 6 hours 45 minutes। 6 hours 45 minutes को आप कैसे लिख सकते हो, 6 इंटू 3/4 लिख सकते हो, बिकॉज 45 मिनट्स कितना होता है, 60/45, 45/60 सॉरी, आवर्स के कन्वर्ट में 1 hour इज इक्वल्स टू 60 minutes, 1 minute इज इक्वल्स टू 1/60 hours, 45 minutes इज इक्वल्स टू 45/60 hours इज इक्वल्स टू 3/4 hours। तो अल्टीमेटली इतना टाइम लग रहा है। अभी फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं अपन, 6 इंटू 3/4 लिखा है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका होता है 6 इंटू 4 प्लस 3/4। समझ आया, ये जो है इसको मल्टीप्लाई होता है, 3 इसका रिमाइंडर है तो 3 जो रिमाइंडर होता है उसको ऐड करते हैं, 24 प्लस 3 27, 27/4। सो टोटल टाइम हो गया अपना 27/4, ठीक है। सो टोटल टाइम कितना है, क्या दिया उसने, वॉक का टाइम प्लस ड्राइव का टाइम इज इक्वल्स टू 27/4 hours, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है दोनों का, एक्स एक्स है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, इफ़ ही हैड टू ड्राइव बोथ द वेज, मतलब यहाँ भी वॉक, यहाँ भी ड्राइव करेगा, यहाँ भी ड्राइव करेगा, ही वुड हैव 2 hours लेस, तो 2 घंटा कम लगेगा उसको टाइम। अब नाउ निकालते हैं इसको, 2, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, वॉक कर रहा थे ना, 2x डिस्टेंस को वॉक करने में जो टाइम लगेगा प्लस 2x डिस्टेंस को ड्राइव करने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, 27/2 hours होगा। बेसिकली इस इक्वेशन को अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और अब उसने क्या बोला है, टाइम टेकन टू ड्राइव 2x, ये वैल्यू दी हुई है इसने, तो ये वैल्यू क्या दी है, 2 hours लेस, मतलब 6 hours 45 minutes में से 2 hour लेस, 4 hours 45 minutes। इसको कन्वर्ट करो फिर से तो कितना होगा, 4 इंटू 3/4 होगा, मतलब कितना होगा, 4 इंटू 4 प्लस 3/4, 16 प्लस 3 19/4, ये 19/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने पास ये चीज़ें हैं। अब ये 19/4 की वैल्यू आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए यहाँ पे। सो 2x डिस्टेंस को वॉक करने में जितना टाइम लगेगा वो होगा 27/2 माइनस 19/4 hours। ये 19/4 यहाँ पुट किया, यहाँ प्लस था तो प्लस को यहाँ मूव करोगे इस तरफ इक्वेशन में तो माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा अपना 35/4 hours, ठीक है। अब 30/4 को फ्रैक्शन को ब्रेक करो, फ्रैक्शन कैसे होगा, 32 होता है तो 4 8 से 32, 8 3/4, और 8 3/4 कितना होता है, 3/4 अपन ने डिसाइड किया था 45 मिनट्स होता है, यहाँ ब्रेक किया था। सो 8 hours 45 minutes लगेंगे उसको बोथ वेज वॉक करने में, मतलब 2x डिस्टेंस वॉक करने में, ठीक है।
क्वेश्चन लॉन्ग था बट डूएबल है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इस क्वेश्चन को बस आपको ब्रेक करना है। सो इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, दो पॉइंट्स दिए थे अपने, पॉइंट्स ए और पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी में उसने दो चीज़ें दी थी। पहली बार बोला था कि एक तरफ अपन वॉक करके जा रहे हो, दूसरी तरफ अपन वापस करके ड्राइव करके आ रहे हैं, ए से बी। यहाँ हम जाएंगे वॉक करेंगे, फिर यहाँ हमारे पास गाड़ी मिल जाएगी तो हम यहाँ ड्राइव करके आएंगे। दोनों का उसने दिया हुआ है टाइम कितना लगेगा आने जाने में। फिर उसने बोला है कि हम दोनों जगह ड्राइव करके जाएंगे तो हमको इसमें मान लो 6 घंटे लग रहे थे, जो भी 45 मिनट थे, 2 घंटे कम लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे 45 मिनट। अब उसने बोला दोनों जगह वॉक करके जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा हमको ये बताओ। तो ऑब्वियसली अगर एक जगह वॉक एक जगह ड्राइव कर रहे थे, 6 घंटे लग रहे थे, और यहाँ पे ज़्यादा लगेगा तो इससे ज़्यादा लगेगा। तो इसी इक्वेशन का मैंने सॉल्व किया। और अगर आप लोगों को मेरी पहली क्लास ध्यान होगी तो मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को, अगर आपके पास टाइम क्रंच है, ये चीज़ सिर्फ तब लगानी है तब आपके पास टाइम नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटैम्प्ट हुए हैं तो भी अटैम्प्ट करना है, और ये चीज़ हमेशा वैलिड रहेगी। बस इसको थोड़ा सा समझदारी के साथ लगाना रहेगा। क्या चीज़ है वो, कि जब भी यूपीएससी सिमिलर ऑप्शंस देता है तो आंसर उनमें से ही होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं एटास वाले, तो आंसर ये तो नहीं है। और ये देखिए 2 ऑप्शन है 45 मिनट्स वाले, जो कि 3/4 का फैक्टर आ रहा था अपने पास। सो ये या तो इससे समझ आया कि इन तीनों में से आंसर है, और इन 2 ऑप्शन समझ आया कि 45 मिनट्स वाला आंसर है। तो अगर आपको मार्क करना है बिना कुछ किए, तब बिना कुछ किए भी ऑप्शन डी मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन अपन ने सॉल्व किया, ऑप्शन डी ही आंसर आया। सो दिस अप्रोच को भी आप फॉलो कर सकते हो जब आपके पास टाइम की कमी हो, व्हेन यू डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम अवेलेबल, so then this can be followed. Okay, now let's move to the last question of today's session of speed, time and distance. So ये इजी सवाल है। 2 सिटीज़ हैं ए एंड बी, 360 किलोमीटर अपार्ट हैं। कार गोज ए से बी जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, वापस आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? फटाक से जल्दी से करिए। 2 मेथड होंगी इसको सॉल्व करने की, एक नॉर्मल फॉर्मूला से आप करेंगे, वरना मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 2 स्पीड्स होती हैं तो क्या होता है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करके देखिए कैसा क्या आंसर आता है। बहुत ईजी सवाल है। ठीक है, सो अपन देखा था 2s1 अपॉन s1 प्लस s2, डिराइव भी करके बताया था मैंने स्टार्टिंग में आपको। तो फॉर्मूला लगाइए, इतना सिंपल हो जाएगा। स्पीड कितनी है 40, दूसरी स्पीड कितनी है 60, सो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, सो ये कितना हो गया 480, 4800 अपॉन 100, 48, तो 48 kmph। ठीक है, सो ये अपना आंसर हो जाएगा 48 kmph बी आंसर। सो आपने देखा कितना 1-2 फॉर्मूलेज आपको रटने हैं, कितना चीज़ें इजी हो जाती हैं। सो यही कंसेप्ट है, यही अपन को आइडिया लगाना है, और वही आज के लिए इतना ही। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें आज के सेशन में आपको काम की रही। पहली चीज़ जो आपको याद करनी है, एक जगह लिख लीजिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकेंड, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। थर्ड, कन्वर्जन फैक्टर 5/18, 18/5। और जब बड़े से छोटा करना है, किलोमीटर से मीटर जाना है तो छोटा कर रहे हैं, छोटा वाला ऊपर आएगा 5/18, मीटर से किलोमीटर जा रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा 18 से 5। ठीक है, नेक्स्ट रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट पढ़ा अपन ने। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होता है, ऐड होता है। नेक्स्ट, बोट्स
डाउन स्ट्रीम ऊपर से नीचे डाउन जा रहे हैं, नीचे डाउन तक की तरफ जा रहे हैं ना, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, फ्लो, रिवर के फ्लो की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें स्पीड क्या हो जाएगी, उसमें स्पीड हो जाएगी अपनी ऐड हो जाएगी, तो स्टिल वाटर की प्लस उसकी वाटर बोट की। और अप स्ट्रीम में क्या होगा, इसके अपोजिट जाएंगे, तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और स्टिल वाटर सिर्फ अपन को निकालनी है, इधर यू जा रहे हैं इधर वी जा रहे हैं, तो स्टिल वाटर कितनी है, तो यू प्लस वी बाई टू हो जाएगी। और सिर्फ पानी की निकालनी है कि कितनी है, तो यू माइनस वी बाई टू हो जाएगी। सो बस ये फॉर्मूलाज अपन ने देखे हैं। इस क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, तो क्वेश्चन को रीड, लेकिन आंसर पक्का से आएगा, ये गारंटी है कि आपके इस टॉपिक के क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं बीच में कभी भी, तो आंसर हमेशा से आएगा। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए और इस सारे फॉर्मूलाज को, बेसिक कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए और आंसर आपके सामने आ जाएगा। So that's it from this today's lecture. Thank you and all the very best. Keep practicing.